हाउसवाइफ है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि भैया ये तो कर ही लेगी, अच्छा वो तो ये हो जाएगा, कल तो आ ही जाएगी, ये तो अच्छा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, वो थोड़ा और खाना बना लेगी। तो ये जो होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, नेवर बॉदर्स मी। मैं वाकई मराठी में बोलते हैं ऐका जनाची करा मनाची, सबका सुना अपनी करो। हाँ अपनी करो। You've really watched the trailer well. Really. Very well. थैंक यू, Such थैंक यू, nice questions also. थैंक यू। ऐसा नहीं कि बाकी लोग खराब क्वेश्चंस कर रहे हैं। कर तुझे। डांट दिया पप्पा को। फादर ने कभी भी किसी भी तरह के वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, True. और वो फिजिकल हो या जबान का वायलेंस, कड़वाहट जो इंसान को मार सकता। मेरी माँ तो फिर भी चूटियां उटियां भर देती थी, मेरे फादर ने कभी भी हम किसी भी बच्चे को कभी हाथ नहीं उठाया। मेरी पत्नी है वो तो मुझे डांट देती हैं, लेकिन तो जैसे कि everybody always knew that your life is made out of the choices that you make. True. So are your relationships. But I think the new idea that's come in now is that you can change that choice and that decision if you want to and if you're not happy in it. अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और बहुत से ऐसे बोलते हैं अरे आप तो माँ बन गई, अभी आप क्यों डांस कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, अभी आप घर देखिए, आप ऐसा कीजिए वैसा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये तो हम सब करते ही हैं। I've learned that they've maintained it and they're there for us, they're there for each other, and of course they've had major fights. And three of us get scared कि अरे अब क्या होगा? अगले दिन they've patched up and we are messed up. So I'm sitting with 4 beautiful artists, कलाकार जिसे कहते हैं, because they work to create a message and send it out. I'm sitting with 2 living legends and 2 who will want to be legends like them maybe 20 years later. Madhuri ma'am, Gajraj sir, Shrishti and Ritvik join me for a conversation only on Bollywood Bubble. First of all, I want to tell you that it's a very special trailer. It's a very special film. I am a mama's boy. Hi. So I think most of us are. And I want to start off with that, you know. In the trailer, you tell your daughter कि एक माँ एक बीवी होने के अलावा भी मेरा कुछ identity एक वजूद है. I think, you know, for the longest time, I have been in that space where I've been telling my mother this because I feel that homemakers don't realize the kind of effort they put together in making a home, because people around them make them feel very worthless because they don't have a job. It's the worst thing ever that relatives do, especially. Now, being on the other side of 50, I think she's living her dream. She's going on trips. She's doing everything. Woo! So I feel that thanks to you guys, I made her watch the trailer and she also said that, "Arey, ye acha, bahut acha hai." So I want to know from you, ma'am, you're a mother yourself. You're an actor. Especially at a time when acting was not even considered a profession, and you don't come from a filmy family. How many eyebrows were raised? And especially when you got married and you became a mother, ki, why are you dancing? Why are you doing this? How many? We love you. And we would want you to do that for the rest of पहले your life. अपना क्लियर कर लिया। We love you. ओके, नहीं ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और बहुत से ऐसे बोलते हैं अरे आप तो माँ बन गई, अभी आप क्यों डांस कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, अभी आप घर देखिए, आप ऐसा कीजिए वैसा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये तो हम सब करते ही हैं। यू नो, बच्चों को देखना या घर संभालना, ये सब करते ही हैं। कुछ अपना भी एक पर्सनालिटी होती है, अपना भी एक वजूद होता है। आप खुद भी, आपके भी इमोशंस हैं, आपकी भी चाहते हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जो घर पे जो पूरा घर संभाल रही है, गृहिणी है, घर पे हाउसवाइफ है, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है कि भैया ये तो कर ही लेगी, अच्छा वो तो ये हो जाएगा, कल तो आ ही जाएगी, ये तो अच्छा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, वो थोड़ा और खाना बना लेगी। तो ये जो होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, तो वो एक इट्स अ डिटरेंट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब कुछ खुद के लिए कुछ तो वो करें लाइफ में, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा मुझे ये फीलिंग रहती थी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे ऐसा लगा this is something that needs to be told, the story needs to be told. Did it ever bother you as a human being when you were told all this, that don't do this, don't do that? नहीं, never bothers me. मैं वाकई मराठी में बोलते हैं ऐका जनाची करा मनाची, सबका सुना अपनी करो। हाँ, अपनी करो। तो आई बिलीव इन दैट। और एक गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप अपना काम करो। आज क्यों ऐसे पहचाना जाता है, ओ माधुरी दीक्षित ऐसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आई एम डूइंग इट।
और मेरे जो इर्द गिर्द हैं, लाइक माई मदर इन लॉ या माई मॉम, माई हस्बैंड, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। Absolutely. और जब तक वो सपोर्ट नहीं मिले, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले, तो औरत लाइफ में जो करना चाहेगी वो नहीं कर पाएगी। I want to ask all of you, growing up, we always look up to our mom and dad's relationship as the ideal relationship. Like we want a relationship like that in our lives. What kind of relationships have you seen? Because it's a relationship based story and I love it. I love the trailer because it's not just a mother-daughter, mother-son, husband-wife story. It's also about individual identity, relationship with yourself, which is very important, which we often forget. So I want to know, what kind of relationships have you grown up with? Have you seen complex relationships? Have you seen very simple relationships, or a mix of both? You've really watched the trailer well, I Yeah, must say. really, Keen really. observer, very well. Thank you. Such Thank nice you. questions also. Love it. Thank you. ऐसा नहीं कि बाकी लोग खराब क्वेश्चंस कर रहे हैं गज्जू जी। लेकिन- बेटा डांट दिया पप्पा को। बोलो। Yeah. तो मैं जिस माहौल में पला बड़ा वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास माहौल था। मेरा बचपन जहाँ गुजरा दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में, और मेरे मम्मी और पापा वो गांव से, राजस्थान में गांव से आए थे और रोजगार करके और किसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। और आसपास जो था, आसपास जो मोहल्ले में जो लोग थे वो भी उसी बैकग्राउंड से थे, और डोमेस्टिक वायलेंस आसपास दिखता था, और बंद दरवाज़ों के पीछे से भी रोने की, चीखने की ज़्यादातर आवाज़ें अक्सर आती थी। बहुत छोटा था तब से कि ऐसा क्यों हो रहा है, थप्पड़ मार दिया खींच के। मैंने मतलब एक आदमी तो था, वो अपनी बीवी को, पहाड़ से थे वो, गढ़वाल से आई माँ, वो थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों, मतलब मुझे तब लगता कि कुछ क्या ऐसा क्या होता होगा। लेकिन मेरे माता पिता जो कि बहुत बेसिक समझ से थे, मेरी माँ की पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं हुई थी और पिताजी ने बहुत कम पढ़ाई की थी और रोज़गार में लग गए थे परिवार को संभालने में। तो एक चीज़ जो मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि उन दोनों के बीच में भी बहस होती थी साल में 2-4 बार। और वो किस तरह की बहस होती है कि आपने अपने घर वालों के लिए इतना कर दिया और आप अपने इस तरह के उसमें जुड़े होते हैं ना, जहाँ पर कि उसकी शादी में इतना खर्च हो गया और यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप इसके लिए क्यों करते हो। दोनों का वो डिबेट बहुत ज़ोरदार हो जाती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा मेरे जहन पे रही कि मेरे फादर ने कभी भी किसी भी तरह के वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, और वो फिजिकल हो या ज़बान का वायलेंस, कड़वाहट जो इंसान को मार सकता है, वो मेरे पास हमेशा रहा। और उन्होंने अपने बच्चों को, मेरी माँ तो फिर भी चूटियाँ भर देती थी, मेरे फादर ने कभी भी किसी भी बच्चे को कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनके फादर बहुत, मेरे दादाजी जब मेरे पिताजी 12 साल के थे तब गुजर गए थे, तो उनके मन में वो था कि तो ये 2 चीज़ें जो हैं कि परिवार के अंदर बिना वायलेंस के भी, बिना बिटर हुए, बिना कड़वाहट के भी घर चलाए जा सकते हैं, वो बिना एक कह सकते हैं कि बिना टेड टॉक या बिना इस तरह की किताबें पढ़े भी मेरे पिताजी और माँ कर रहे थे, जो मुझे बाद में मेरे जीवन में मेरे काम आई। मैं कह रही हाँ यार, लेसन जो होते हैं ना, कई बार आप पॉइंटर्स नहीं होते हैं, 10 पॉइंट्स टू लिव योर लाइफ, वो नहीं होते हैं, आपकी चिपके होते हैं दिमाग में। तो मुझे लगता है कि मैं उनको, उस फलसफे को फॉलो करता हूँ अपने परिवार में। मेरी पत्नी है, वो तो मुझे डांट देती हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त करके आगे चलता हूँ। What about you guys? Do you feel that idealistic एक हो जाता है when, and तब के ज़माने में ना प्यार, compassion, compromise in a nice way, adjustment, support, सब कुछ होता था। आज हम लोग थोड़े से बहक गए हैं। I think love has become very polluted, you know. Love, I'm not even talking about romance. Love towards anybody around you has become a little polluted. Do you guys feel that way? You know, मैम was saying the other day कि कुछ चीज़ अगर मुश्किल हो जाती है तो लोग तुरंत छोड़ देते हैं अभी। और पहले ये होता था, used to work it out and used to make things work, and I think that's what I've seen with my parents, because when I was in 4th grade we shifted to Indonesia and 2-3 years later I had to come back to Bombay. So my mother came with me क्योंकि पढ़ाई and this and that. So my parents have been living away from each other for the 3 of us, for years now. And they meet each other maybe once a year or twice a year. Finally now she goes and lives there for a longer time. But you know, we say कि अगर distance आ गया तो long distance कैसे चलेगा, पहले ही कट्टा thank you हो जाता है, bye bye, you know, we won't work it out, it's fine.
but they have worked it out for 29 years. Oh, wow. Yeah. And they call each other every day. And even it's the most bland conversation. Nobody is smiling. Okay, they're just like, हाँ विनीता, हाँ तपन, क्या हुआ? अच्छा कर लिया? अच्छा, bye. That's it. You know, so it's like that. And But that's why what it's I've learned. there's beauty in that. Yeah, I've learned that they maintained it and they're there for us, they're there for each other. And of course, they've had major fights. And three of us get scared कि अरे अब क्या होगा? अगले दिन they've patched up and we are messed up. Yeah, I'm like सिद्धि इतनी लड़ाई कर ली यहाँ दोस्ती हो गई हमारा क्या हो गया? So yeah, it's beautiful. What about you? मुझे जेन्युइनली लगता है कि हर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में एक रिफ्रेशिंग आइडिया तो आना ही चाहिए हमेशा. तो जैसे कि एवरीबडी ऑलवेज न्यू दैट योर लाइफ इज मेड आउट ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेक. True. सो आर योर रिलेशनशिप्स. बट आई थिंक द न्यू आइडिया दैट्स कम इन नाउ is that you can change that choice and that decision if you want to and if you're not happy in it. उसके कुछ loopholes भी हो सकते हैं, but एक refreshing idea आना बहुत ज़रूरी है, and I think the new refreshing ideas are good. It's important. After a certain age and stage in their career, social conditioning is such that they are always made to feel guilty about it. वो एक guilt होता है आप करो, फिर भी आपके दिमाग में होगा कि यार मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं. Do you think that happens? Taken for granted ना, मतलब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं है. तो अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो लोग टोकते हैं फिर कि अरे फैमिली के लिए कुछ करो, आप अपने लिए कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों गए, यू नो, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना ही है. तो ऐसा होता है, बट दैट्स सोसाइटी, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से थ्रू मजामा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नो, औरत की भी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना एक वजूद है. तो दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. इट्स वेरी सेंसिटिव बट इज़ नॉट प्रीची, you know, the way we've said it. So that's sub I think all women go through that. Even Indra Nooyi, उन्होंने भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि घर पे जाते वक्त फोन आया कि दूध लेते हुए आना. Even after, you know, she's worked in the office all day long and she's done everything, दूध तो आपको लाना था, ऐसे. मतलब so that's conditioning. You know, everybody's. हाँ, मतलब ये कि जो औरत है भले ही वो होम मेकर है या जॉब कर रही है, उसकी ड्यूटी है, उसको करना, ये मान लिया जाता है हमारे हिंदुस्तानी घरों में. लेकिन चीजें बदली, हमारे घर में बदली है कि कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ महीनों तक, क्योंकि जो रेगुलर अपने हेल्प नहीं है हमारे यहाँ पर, पार्ट टाइम के लिए आते हैं, तो वो बंद हो गए कोविड में. तो अब सारा जिम्मेदारी जो है वो संजना के कंधे पर आई और कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चला. और फिर लगा कि एक दिन लगा कि बम फट जाएगा. रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए थे और हमें लग रहा था कि हम जो अपनी केयर कर रहे हैं वही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम बहुत तीर मार रहे हैं अपना केयर करके, कि अपनी प्लेट उठा ली या अपना कुछ कर लिया. फिर रियलाइज किया कि नहीं, सारा जो काम है. तो मेरा एक बेटा जो है वो 24 साल का है, एक 14 साल का है, दोनों को बैठाया मैंने और कि बेटा ये फट जाएगा बम किसी भी दिन, हम सब घायल होंगे, तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. तो कपड़े समेटना, क्योंकि कपड़े तो पहन रहे हैं तो वो धुलेंगे भी, खाना तो खाया जा रहा है, बर्तन साफ होंगे. तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो बर्तन मतलब ऐसा हो गया था कुछ महीनों के लिए कि बिल्डिंग में बेस्ट बर्तन मैंने मारे. अभी मान रहे हो? अभी तो अपना वो पार्ट टाइम जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए, तो मैं क्यों उनके. मैं भी आई एम ऑल्सो, मेरे घर पे मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ एंड मुझे ना वो साफ सफाई में बहुत प्रॉब्लम होता है. झाड़ू कट का यू मेक मी डू 5 टाइम्स ऑफ बर्तन, 5 into 5 आई विल डू इट फॉर 5 हाउसेस, बट वो झाड़ू कट का मेरे से नहीं होता. झाड़ू कटके के चक्कर में फिर ये हुआ कि किसी ने सजेस्ट किया, तो वो एक महंगी वाली मशीन आ गई जिससे कि पूरा, तो फिर उसके लिए फिर दोनों बेटों में झगड़ा होता था कि कौन साफ करेगा, क्योंकि उसमें उनको वीडियो गेम वाला मजा आ रहा था. But I want to ask all of you, you know, that sir, you मतलब आज जब आपके बारे में बातें होती है ना, तो आपके हर मसल में, हर पुर्जे से एक्टिंग निकलती है, ये बोला जाता है. It's a fact. And if you go online, you will see those memes where you have a straight face, but that is an answer to every problem. So the problem and there's the face. If it's a happy thing, there's that same face. So that's what they're trying to say online, that, you know, there's this acting in every muscle that you have. My mom loves your show. I think she was the one who actually told me that I don't think you watched it, and she made me watch it during lockdown and everything, because I was in Calcutta. And I have made you talk to my father. My father, I think, is still in that era only. He still loves you with all his heart, and he got like full crazy when
he spoke to her last time on a Zoom call. I want to know that, and you have done some amazing movies, like very unconventionally conventional roles. Do you feel that this is the right time for actors? आपने छोटे छोटे roles भी किए एक Yes, time पे. yes. आज आपको lead फिल्में मिलती है, आपको awards मिल रहे. It has taken some time to come to that level of acceptance. But today we are at a stage where those barriers, those boundaries are gone. Do you एब्सोल्युटली गोल्डन पीरियड है सभी के लिए, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, कि जहाँ पर वो कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि आप के पास जो काम आए आप कर लेते, उसमें ज़्यादा डिबेट नहीं होती थी. आज की तारीख में एक्टर्स के पास चॉइसेस हैं, राइटर्स के पास चॉइस है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट करना है, ये नहीं करना है. वो तभी, और जब चॉइस होती है तो आप थोड़ा सा एम्पावरमेंट आता है, आप सही काम कर पाते हैं. मतलब वो हिट होगा या सक्सेसफुल होगा या नहीं, वो तो सेकेंडरी है. आप मजा लेके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है ये वो जोन है. Also, we have OTT now, and Yeah. the number of writers, actors, directors, producers, they've got so many chances to create what they wanted to create for years. Yeah. And because of that, all the actors are getting so many auditions and opportunities. And I know Ritvik and I have done a lot of OTT work. And this also has taken 7. This has been in the planning for 7-8 Yeah, years. yeah. If I've read it somewhere. Yes. हाँ. मतलब एक और चीज मुझे मतलब ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सॉरी, कि अगर ये सिनेमा के लिए प्रोजेक्ट बन रहा होता, मेरा ऐसा मानना है, ओटीटी नहीं होता और ये सिनेमा के लिए होता, तो और एमडी के साथ कास्ट करना होता उनका जीवन साथी का पार्ट, तो शायद मुझे चूज नहीं किया जाता. No sir. नहीं, मैं, अरे इसमें ईमानदारी की बात है. नहीं, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात. ये मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ. मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल आई बॉल्स कितने मिलेंगे, क्या होगा, लोग तो इसमें अनिल कपूर को होना चाहिए, या जैकी श्रॉफ को होना चाहिए, या सनी देओल होंगे, या मतलब उस तरह का आता है. जो अगर मैं बनाता तो मैं भी यही करता Yeah. कि यार ये देखेगा कौन इसको, फिर गजराज True. को ले हुए तो अब ये थिएटर में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ओटीटी में वो आपके पास स्पेस है और वो हम बिना डरे वो कर सकते हैं हम. Yeah, true. What about you, Ritvik? I really think कि किसी भी तरीके से आप ना, जैसे स्टोरी टेलिंग एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, आप जितना भी उसको बांधते रहेंगे ना, फट के कहीं ना कहीं और से निकलेगा. सो इट वाज द फैक्ट दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि सिर्फ एक तरह की कहानियां, एक तरह की सिनेमा हो रही है, फलान ढिमकान. दैट्स व्हाई द ओटीटी बूम्ड लाइक दैट, बिकॉज पीपल आर कॉन्स्टेंटली क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. तो जितना आप आर्ट को दबाएंगे उतना कहीं ना कहीं और से वो निकल के आएगा ही आएगा. नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म हैज डेमोक्रेटाइज्ड Yes. Absolutely. यू नो एक्टिंग और रोल्स और एवरीथिंग. तो आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सो मेनी सीरीज, अलग अलग सीरीज बन रही, कितना टैलेंट आया है, यू नो, न्यू पीपल हु आर गेटिंग डिस्कवर्ड, और ऐसे एक्टर्स, यू नो, लाइक इवन व्हेन आई वर्क विद देम, दे आर न्यू, आई मीन कंपैरेटिवली न्यू, एंड दे आर सो गुड. तो मुझे ऐसा लगता है OTT has done that also. I want to tell you that as a 90s kid, like we've of course lived that dream where we've only, हर किसी को माधुरी दीक्षित ही बनना था एक टाइम पे, लड़का या लड़की. Let's just put it out जो there. लड़का या लड़की है, Yeah, absolutely. We all dance to your songs, ma'am. Yes, yes. I want to know that even then, जहाँ पे ना वो चाल चलन नहीं था ऐसे मूवीज बनने का, you have done a Mrityudan, you've done an Anjam, you've done a Pukar, which is one of my most favorite roles of yours. Thank you. People remember that along with a Hum Aapke Hai Kaun also, you know, and Gajagamini and all these movies where you took those multiple leaps. I want to ask you that, do you feel that you've always been making these choices, ma'am? Absolutely. Do you think that had this been the time then, the perception and the treatment to you or the treatment towards that project and the reception would have been different? या मुझे लगता है हर दौर का एक, मतलब हर बार एक दौर चलता है ऐसे Correct. फिल्मों का. तो तभी लाइक बिग कमर्शियल फिल्म्स, और तभी सिर्फ थिएटर था और कोई, यू नो, देयर वर नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट फ्रॉम फिल्म मेकर्स. मतलब फिल्म बनानी है तो सिनेमा घर के लिए बनानी है, थिएटर के लिए बनानी है. लेकिन आज इतने सारे ऑप्शंस हैं. आप मतलब चाहे आप फिल्म हो, सीरीज़ हो, आप सिनेमा के लिए बना सकते हैं, आप एक छोटे पर्दे के लिए बना सकते हैं आप. सो आई थिंक screens have changed, like, True. लेकिन how the audience take the content is up to them, how they consume it. और आज because of OTT मैं कहूँगी कि इतने सारे आप सीरीज, मूवीज देखते हैं from all over the world, अलग अलग सिनेमा, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कल्चर की स्टोरीज. तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस भी मेच्योर हो रहा है. True. तो इवन इन थिएटर्स नाउ आई थिंक वी विल सी
अलग अलग किस्म की फिल्में, मोर रिलेटेबल कैरेक्टर्स, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे हमारी फिल्म है मजामा, Correct. आई थिंक वी आर ऑल वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर्स. एवरीडे लाइफ में आप देखेंगे कैरेक्टर्स एंड येट इज यूनिक. और There's something- 240 कंट्रीज में दिखाई जाएगी। 240 कंट्रीज में दिखाई जाएगी. एंड तो मुझे लगता है इट्स अ यूनिक स्टोरी और एक यूनिक ऑडियंस को भी देखने मिलेगी इसे. All the best Thank for this film, and it's the first that Amazon is producing. It's a first feature film, and I just know that it has a lovely messaging, and I hope that like my mother, it touches a lot of those women who possibly are voiceless but need that voice, and may you be the voice for them. That's all. That's How all I sweet. would Thank say. you so Thank you. much. But Thank you. before going, because we love you, I've got something amazing for you, which I was going to give you in the last interview, but I couldn't. Oh, because it was- okay. So this is something that an artist has wait to made for see. you. Oh. It's Prasad. Oh, that's so It is cute. like all your iconic characters. Oh I can actually hear the songs. This is Humko. yes. And this is Choli ke Choli Piche. ke This Piche is kya Didi ke Didi Tera Didi Divana. Tera Divana. And this is Pooja. Maya. प्रसाद भट्ट। Oh, thank And he actually you. ran a my caricature God. challenge also for you. There were so Fab. many. This is made by him though. Also. He's done So I a will great give it job, to you. guys. Thank you so much. Thank you, Prasad. And from my father also, because he'll be very happy with me giving this to you, because I think he loves you. He loves you the Oh, most. thank you so much. Thank you. What's his name again? Prasad. प्रसाद भट्ट। Oh, This is Prasad Bhatt. oh my God. तो मतलब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा अभी. So thank you, Prasad ji. Thank you so much.